awarded by Symbiosis Pune for MBA degree in Human Resource. Sir is also open source Red Hat certified engineer from USA. Currently, Sir is doing research on Vedic culture and literature. Sir is a course coordinator of Overview of Srimad Bhagavad Gita. He has visited different districts and colleges like Anand, Kheda and many more for youth preaching. Sir is expert to solve the problem related with the time and stress management by means of spiritual solution. He is continuously catering youth preaching from last 15 years and he has dedicated his life for youth awareness and development. I convey my regards and welcome our chief guest, Mr. Adi Guru sir. Thank you so much sir for accepting our invitation and coming over for this seminar. I am also thankful to Mr. Bhavik sir for helping us to arrange this seminar. I wish this seminar enlightens us all and provides with us approaches to deal with the life problems of today's and tomorrow's. Thank you. Once again, thank you. Thank you, ma'am. तुलसी, मेरे मज़हब में तुलसी एक शांति का प्रतीक है, जो हेल्थी लाइफ का भी प्रतीक है. So, now let's have the heart-to-heart welcome to our guest with Tulsi Apple and Memento. I request to Ms. Tanvi Desai to present Tulsi Apple and Momentum to our guest of the seminar, Mr. Adi Guru. I would like to request Mr. Adi Gurudas to come and enlighten the audience with his precious words. So thank you very much for giving me an opportunity. Thank you all the principal ma'am, sir, all the staff and the least but not the last, all of you, क्योंकि आप लोगों के कारण ही हम यहाँ पर हैं. So just like ma'am says that our tradition, the Indian tradition is when we start any program, so first we do some prayers. So here, Mr. Prayas, he came with us. So we do 5 minutes
mantra meditation, and then we will start the session. Conquer or curing the cancer mind. Okay? So 5 minutes. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. सभी हमारे साथ कह रहे हैं तो हरे कृष्णा हरे बोलिए प्रेम से Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Everybody together. Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
So now we are just going to start the session. Curing or conquering the cancer of mind. So अभी हमने जो है मंत्र मेडिटेशन हमने सुना. In our Vedic literature, the mantra meanings in the Sanskrit it says manah trayate iti mantra. मंत्र का मतलब होता है जो माइंड को डिलीवर कर दे. ट्रायते मीन्स डिलीवर, जो हमारे माइंड को डिलीवर कर दे, मन को खोल दे. हमारा माइंड, हम जानते हैं कि हमारा जो माइंड है, द ह्यूमन माइंड इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल एंटिटी, बहुत ही शक्तिशाली है. तो जो मंत्र है वो क्या कहता है, हमें हमारे माइंड को वाइड अप या ओपन अप करने में हेल्प करता है. एंड दैट्स व्हाई इट सेज मनः त्रायते इति मंत्र. एंड हाउ नाउ दिस मंत्र वर्क्स. Why I am just sharing this, because this is related to our topic, this mind. इस सदी के सबसे बड़े जो साइंटिस्ट, अच्छा हिंदी सबको आती है समझ में? मैं इंग्लिश में जो है गुजराती में थोड़ा तंग हूँ, तो मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करूँगा. तो इस सदी के सबसे महानतम जो वैज्ञानिक हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका सबसे फेमस फार्मूला क्या है? E=mc². तो उसमें हमें, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आसानी से रिलेट कर सकते हैं. तो हमने बताया जो एनर्जी है, कोई भी जो एनर्जी है वो समाप्त नहीं होती है कभी भी. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अभी हमने यहाँ पर कुछ सुना या हम कुछ बोलते हैं, when we speak, so what is this? This is a sound. Sound is energy. So when we speak, then sound emanates, energy जो है बाहर निकलती है, और वो एनर्जी जाके इस पूरे एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होती है. Sometimes people ask, या ऐसा अनुभव है, कभी आप किसी भी टेम्पल जैसे प्लेसेस पे जाइए तो लगता है क्या, इट्स लिटिल बिट पीसफुल. तो हमारी जो कल्चर है, कल्चरल एस्पेक्ट इतनी स्ट्रांग थी. जैसे अभी कोई पूछे, कोई अगर एक पेरेंट अपने बेटे को कहता है बेटा मंदिर जाया करो, बेटा पूछा भाई क्यों जाऊं, क्या जुबान लगाता है, मेरे मामा मम्मी पापा ने बोला था मैं गया, और मैं बोल रहा हूं तो जा. Now it is 21st century. Everybody wants some logic. Why this? क्योंकि अगर हम किसी ऐसे प्लेस पे जाते हैं तो वहां पर कुछ एनर्जी है, और एनर्जी जो है वो हमेशा हमें प्रभावित कर रही है. कैसे? अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप हॉस्पिटल में जाए, हॉस्पिटल में भी वहां पर भी बहुत शोर शराबा नहीं है, शांति है, लेकिन वहां पर सुकून नहीं है. शांति हो सकती है, वहां हॉस्पिटल में जाए कोई बोल भी नहीं रहा है, लेकिन वहां पर आप ऐसे नहीं लोगे वाह हॉस्पिटल आ गया, लेट्स रिलैक्स हियर, हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी यहां से निकले. क्यों? क्योंकि वहां पर शांति तो है, साउंड की शांति तो है, लेकिन वहां पे वाइब्रेशन क्या है? किसी को चोट लगी है, कोई एक्सपायर कर गया है, कोई चीख रहा है, कोई पुकार रहा है, वहां पे वो वाइब्रेशन है साउंड. या अगर फॉर एग्जाम्पल आप इस मॉल में जाए, वहां पे जाते ही आपको भी मन लगा some purchasing this and that here and there, because energy affects our mind. इसीलिए किसी ऐसे प्लेस पर, रिलीजियस प्लेस पर जाने के लिए क्यों कहा गया जाता है? क्योंकि वहां पर कुछ पॉजिटिव एनर्जी है जो हमें प्रभावित करती है, जो हमें दिखे या न दिखे, बट हमारे माइंड को वो इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है. एंड दैट्स व्हाई
This is our tradition. Before starting anything, we should pray. We should pray some mantra, we should pray some prayers. संस्कृत में नासा ने भी माना कि संस्कृत सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज है, सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज. When you speak, when you pronunciate the Sanskrit parameter in a particular format, there is a lot of energy emanates. बहुत सारी एनर्जी निकलती है जो हमें प्रभावित करती है हमारे माइंड को. And we all know that our mind is one of the most powerful thing. In the Bhagavad Gita, Arjuna, he was a warrior, Yodha. And he was so strong warrior. In one place, this is mentioned that he was so strong that with his bow, Gandiva, he can stop the air. हवा को बदल सकता था, उसका रुख बदल सकता है. He was so strong. And that Arjuna stated in the Bhagavad Gita, Chanchalah hi mana Krishna pramad vadabhadrana. Oh Krishna, my mind is chanchala, flickering here and there. And pramad means it's like power condenser. Vadabhadrana, and it's very, very powerful. So what to do? क्या करूं? So even the most religious text, or you can say the spiritual text, not only religious, and the spiritual text. Arjuna says, Chanchala hi mana Krishna. And Lord Krishna, जब भगवान ने उत्तर दिया पूरे भगवद गीता में, तो उन्होंने बताया how the mind works. तो हम यहाँ पे कोई आपको कोई ऐसा कुछ प्रवचन देने हम नहीं आए. हम यहाँ पे आपको कुछ मैकेनिज्म बताने आए. क्योंकि अगर हम यहाँ पे आके आप कहें कि ये करो, आप सोचेंगे who the hell are you? आप बताने वाले कौन? We are not here to instruct anything. We are here to tell you only the mechanism so that you can observe. आप जो है खुद से observe करें, और if you feel that it works on you, then you can apply. Because in the Bhagavad Gita, when Lord Krishna spoke complete Bhagavad Gita, पूरी भगवद गीता बताने के बाद भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? यथा इच्छति तथा कुरु. तो मैंने तुम्हें बता दिया तुम्हारी जो इच्छा है वो करो. So that's why this mantra works, the mind entity. So today the topic is curing or conquering. Conquering मतलब उसके ऊपर हमें विजय हासिल करनी है, या curing, या उसको बीमार है तो उसको ठीक करना है. तो आज का जो टॉपिक है, हम इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द माइंड मैकेनिज्म. ये माइंड मैकेनिज्म है क्या? माइंड का मैकेनिज्म कैसे काम करता है? हमारा माइंड कैसे काम करता है? डोंट वरी, वी आर नॉट गोइंग टू सम बायोलॉजी क्लास कि माइंड कैसे काम करता है अंदर, बट वी आर गोइंग टू स्पिरिचुअल क्लास. And then we'll discuss what is the mind cancer, and the last we discuss how to conquer or cure this mind cancer. इसको कैसे क्योर करेंगे, इसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त करेंगे. तो ये 3 भागों में हमारा डिस्कशन रहेगा. तो सबसे पहले हम समझेंगे माइंड मैकेनिज्म. तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द माइंड मैकेनिज्म, भगवद गीता में बात किया गया है कि भगवद गीता का सबसे प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है, आप सबने सुना होगा कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं. कितने लोगों ने सुना है? रेज योर हैंड. अच्छा, कुछ लोगों ने नहीं सुना. अच्छा, ठीक है. आत्मा शब्द कितने लोगों ने सुना है? मोस्ट ऑफ इट. अच्छा, जब आत्मा शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले मन में क्या ख्याल आता है? एट 12 रात को 12 बजे सफेद कपड़े पहनकर बाल ऐसे रखे, some horror, there are so many horror movie comes regarding the Atma and the Bhoot and so जब ये आत्मा सुनते हैं तो ये आत्मा भटक रही है, but actually
नॉट। आत्मा मीन्स जस्ट आप अपने बगल वालों को एक बार देखिए और आपको देखिए, उसको देखने से डर लग रहा है। हाँ, मेरे को देखकर हो सकता है डर लग रहा हो बिकॉज ऑफ माई स्पेशल ड्रेस कोड। लेकिन भगवत गीता कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। और उसके लिए देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट। तो अभी आज का टॉपिक वो तो नहीं है, लेकिन एक समरी है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। बॉडी हैज 5 एलिमेंट। हमारे ये शरीर है, ये 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है। वो क्या है? धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके 5 तत्व कहते हैं। तो हमारी बॉडी में वो सारी चीजें हैं। और इस बॉडी के, ये जो ग्रॉस बॉडी है, इस ग्रॉस बॉडी के अंदर एक और बॉडी है, और वो है सटल, यानी सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर जो है वो 3 चीजों का बना हुआ है, 3 एलिमेंट्स। एंड द फर्स्ट एलिमेंट इज माइंड, इंटेलिजेंट एंड ईगो। ये शायद कम लोगों को पता है कि हमारा, देखिए हमारे पास माइंड है, ठीक है, लेकिन हमें दिखता नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस इज अ सटल, सूक्ष्म है। और उसके बाद एक और बॉडी है जिसे हम कह सकते हैं आत्मा, सोल, एंड दैट इज मेड ऑफ 3 एलिमेंट, दैट इज अ सत मींस इटर्नल, चित्त मींस नॉलेज, एंड आनंद मींस ब्लिस। तो हम आज का हमारा टॉपिक क्या है? बॉडी नहीं, आत्मा नहीं। आज का जो टॉपिक है वो है जो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, जो कि 3 चीजों का बना है, माइंड, इंटेलिजेंट एंड ईगो। तो आज हम सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं, बिकॉज हाउ दिस बॉडी वर्क्स, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में जाएंगे कैसे काम कर रहा है, हाउ द सिस्टम वर्क्स। और अगर सोल की बात जाए तो दैट इज टोटली स्पिरिचुअल। तो हम बात कर रहे हैं माइंड की। क्यों माइंड की हम बात कर रहे हैं? क्योंकि माइंड के बारे में हर जगह अनेकों बात कही जाती है। अच्छा, ये स्टेटमेंट, मुझे जो, मेरे मन को जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा या करूंगी, इस स्टेटमेंट से कितने लोग सहमत हैं? रेज योर हैंड। मेरे मन को जो अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा या करूंगा। यस, नाइस, कोई बात नहीं। बाकी लोग अपने मन की नहीं करते, या हो सकता है करने नहीं दिया जाता। अच्छा, क्वेश्चन बदलते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू डू? कितने लोग अपने मन की करना चाहते हैं? अब आप ये कितने लोग करते हैं वो अलग बात है, ऐसा भी करने नहीं दिया जाता। मन की करना तो चाहते हैं बहुत कुछ। आपके नॉलेज के लिए आपको अगर हम बताएं कि हमारे जो माइंड है, आवर माइंड या मन, हमारे मन के पास डिस्क्रिमिनेशन पावर ही नहीं है। सही और गलत का चुनाव करने का पावर मन के पास नहीं है। और इसीलिए अनेकों जगह पे बात कहा जाता है कि मन को कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। क्यों भाई, क्यों कंट्रोल करें? हम मन की मर्जी है, हम जो करें। क्यों? बिकॉज ऑफ हमारा जो माइंड है इसके पास डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है। कैसे हम समझें कि हमारे मन के पास डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है सही या गलत करने की? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि मैं कहीं जा रहा हूं और सामने से एक व्यक्ति आए और उसने मेरे को पंच मारा, मैं चारों खाने से नीचे गिर गया, फिर मैं किसी तरह उठा, मैनेज किया, तो सबसे पहले मेरे मन में क्या ख्याल आएगा? आप कहोगे कि सर आपके मन में क्या ख्याल आएगा, मैं कैसे बताऊं? तो आप अपने ऊपर ले लो कि कोई आए और आपको एक पंच मारे और आप नीचे गिरे, उठे, सबसे पहले मन में आपके क्या ख्याल आएगा? टिप्स फॉर दैट,
जैसे को तैसा, हाउ डेयर यू, टच कैसे किया तुमने? अभी तो टच तो थोड़ा वो कहते हैं उंगली कैसे दिख रहा है। ठीक है, तो हम आप उठे कैसे कहते, और आप ये बोलने वाले थे, ये कि हिम्मत कैसे हुई? तब तक आपने देखा कि व्यक्ति तो बाहुबली है आपके सामने, लंबा चौड़ा मोटा एकदम अप्लाई कर दिया। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। उसने मारा, मैंने मारा, अगर उसने दोबारा रिएक्शन करा, लेकिन मन कहता रहता है मार, दिमाग कहता है समझदारी से काम करो, अभी मारोगे फिर जाओगे। तो ये सबूत है कि हमारा मन कई चीजों को करने के लिए करता है। फॉर एग्जाम्पल कि कल एग्जाम भी है और आज नाइट में मैच भी है, तो मन कहता है एक बार स्कोर बोर्ड चेक करके आते हैं, देखेंगे नहीं। दिमाग कहता है स्कोर बोर्ड चेक करने से पहले एक बार बुक भी चेक कर ले, अभी तक खोली नहीं है तुमने। तो हमेशा ये डायलॉग चलता रहता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारा जो माइंड है, माइंड इज लाइक अ स्टोर हाउस। स्टोर हाउस क्या है? हैबिट्स का। स्टोर हाउस क्या है? डिजायर का। स्टोर हाउस क्या है? एक्सपीरियंस का। हमने जो अनुभव किया है वो मन में स्टोर हो गया है, और जो अनुभव नहीं किया है, मतलब कुछ हमारी इच्छाएं हैं, ये करेंगे, ये होगा, वो भी मन में है। तो सारी चीजें माइंड के अंदर स्टोर होता है, एक्सपीरियंस एंड डिजायर एंड हैबिट्स। जो भी हम काम करते हैं वो माइंड के अंदर स्टोर होता है, लेकिन डिसीजन मेकर नहीं है। ये डिसीजन मेकर नहीं है। जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम में आप पढ़ते हैं कि मेमोरी यूनिट, एमयू, सीपीयू में क्या है? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है? वो स्टोरेज यूनिट है भाई। डिसीजन मेकर तो और है, एएलयू है। तो ऐसे ही माइंड जो है इस लाइक ऑफ स्टोर हाउस, केवल स्टोर करता है। आपने कहीं समोसा खाया और अगली बार उधर से गुजरेंगे, माइंड कहेगा खाएं क्या, बहुत अच्छा था। वो अनुभव स्टोर हो गया, अच्छे बुरे। हाँ, अच्छे अनुभव के आधार पर कई बार आप अपने माइंड से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका अनुभव अच्छा है, सही है या गलत है, ये माइंड डिसाइड नहीं करेगा। माइंड कहेगा अच्छा लगा कर दो, बुरा लगा मत करो, ठीक है। लेकिन सही है या गलत है ये माइंड डिसाइड नहीं करता। उसका डिसीजन कौन लेता है? उसका डिसीजन लेता है ये इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज अ डिसीजन मेकर। अभी तक तो हम यही सोचते थे कि जो मर्जी होगी वो हम करेंगे, लेकिन कहते हैं जो मन की करे उसे कहते हैं मंकी। मंकी मीन्स बंदर, वो एक डाल से दूसरी डाल में कूदता रहता है। तो हम सभी ये नहीं कर सकते जो मेरी मर्जी होगी वो हम करेंगे। और अगर वास्तविक में ऐसा छूट दे दिया जाए, ठीक है, तो आज मैं यहां पर केवल डेस्क और बेंच को ही यहां पर क्लास दे रहा होता है शायद। तो ये माइंड स्टोर हाउस है, इंटेलिजेंस जो है वो डिसीजन मेकर है। और यहां पर ये दिखाया जाए कि माइंड के अंदर ये चीजें आ कहां से रही है, स्टोरिंग कहां से आ रही है? हमारे सेंसेस से, आईज, नोज, टंग, ईयर, स्किन। यहां से जो हम देख रहे हैं वो माइंड में स्टोर हो रहा है, जो सुन रहे हैं वो स्टोर हो रहा है, जो टेस्ट कर रहे हैं वो स्टोर हो रहा है, ठीक है, जो टच कर रहे हैं वो स्टोर हो रहा है। यहां से इनपुटिंग हो रही है माइंड के अंदर कंटिन्यूअसली। एंड दैट्स व्हाई इट इज सेइंग, इसीलिए कई बार कहा जाता है कि इट्स वेरी वेरी केयरफुल व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू हियर, व्हाट यू सी। इसलिए बहुत ही हमें प्रिसाइज भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत काम करता है। तो माइंड मैकेनिज्म कैसे काम करता है? माइंड इज लाइक अ बुक, चेंज कंडीशनिंग बाय चेंजिंग स्क्रिप्ट्स रिटन इन योर माइंड। एक पुस्तक की तरह है, एक ऐसी पुस्तक जिसमें आप अपनी स्क्रिप्टिंग खुद से लिख सकते हैं। और एक बार अगर आपने स्क्रिप्टिंग लिख दी, उसको फिर मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है माइंड के अंदर। माइंड ऐसे
काम करता है, ऐसे काम करता है, बहुत ही मिस्टीरियसली काम करता है। तो ये जो है एमबीए में, मैनेजमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट में बीबीए के कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पर शायद में। कौन है बीबीए का? बीबीए का कोई है इसमें? शायद अभी नहीं है। तो मैनेजमेंट में एक सब्जेक्ट होता है पब्लिक एडवर्टीजमेंट। पब्लिक एडवर्टीजमेंट वहां पर यह बताया जाता है कि कैसे एडवर्टीजमेंट किया जाता है। तो जैसा कि हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में बीच बीच में ऐड आता रहता है, टीवी प्रोग्राम्स में, किसी भी प्रोग्राम में, आजकल हर जगह यूट्यूब पर हर जगह प्रोग्राम आते रहते हैं, उसमें बीच में ऐड है। 30 सेकेंड्स का ऐड के लिए कंपनी कितना एक्सपेंडिचर करती है? लैक्स एंड लैक्स रुपीज, मिलियंस। कितने सेकंड के लिए? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। क्यों? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक, अगर आप कोई मेन प्रोग्राम देख रहे हैं और उसमें बीच में ऐड आ गया, कंपनी इतनी चालाक है कि आप YouTube के लिए जो है वो दे देता है कि आपको 10 सेकंड देखना ही पड़ेगा, तभी आप स्किप कर सकें, नहीं तो पैसे खर्च करो प्रीमियम मेंबर के लिए। आपको जबरदस्ती दिखाते हैं। Nobody want to, कोई देखना नहीं चाहता कि मूवी देख लिया पर ऐड, वाओ ऐड आ गया, अभी देखेंगे। अगर हमारे पास रिमोट हो तो रिमोट से स्किप कर देते हैं चैनल, फिर दूसरे चैनल पे जाते हैं, वहां पे भी ऐड आता रहता है, फिर स्किप करके तीसरे पे जाते हैं, वहां पे भी ऐड आता है, और तब तक पहले चैनल का टाइम हो जाता है। फिर एक चैनल के जगह पे 3 चैनल का ऐड देकर वापस आते हैं। इस तरह कंपनी काम करती है, ये सिखाया जाता है पब्लिक एडवर्टाइजमेंट में। लेकिन कहने का मतलब ऐड 30 सेकेंड, 10 सेकेंड का जो ऐड है वो हमारे जो कोई देखना नहीं चाहता और हमारे माइंड पर इतना इंप्रेशन डालता है, इतना इंप्रेशन डालता है कि हमें लगता है कि जब तक हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं आएगा, ठीक है, तब तक कर लो दुनिया मुट्ठी में होगी नहीं। अगर ये दिया तो ही दुनिया को मुट्ठी में कर देंगे। किसका प्रभाव है? ऐड। एक सिंपल ऐड, नोबडी वांट टू सी, लेकिन हमारे माइंड पर ऐसी स्क्रिप्टिंग डाल देता है बार बार। जैसे इवेंट मैनेजमेंट में एक होता है जिसे कहते हैं ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर कार मतलब मारुति, ठीक है, वॉशिंग पाउडर का मतलब सर्फ, या जो है मॉस्किटो क्रीम का मतलब ओडोमॉस। इन्होंने क्या किया? ब्रांड बना दिया। कैसे बना दिया? एडवर्टाइजमेंट के। तो कहने का मतलब सिंपल सी है कि जिसे आप देखना नहीं चाहते, ऐसे 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड का एक एडवर्टाइजमेंट आता है और हमारे माइंड पे स्क्रिप्ट छोड़ के जाता है, और फिर हमें लगता है कि जब तक हमारे पास आईफोन 13 प्रो मैक्स न हो तब तक जीना तो क्या जीना। ऐसा हम प्रयास करते हैं, संभव है। क्यों? माइंड में स्क्रिप्टिंग ऐसी जा रही है। इसलिए कह जाता है कि अगर आप मान लीजिए कि जो बार बार आप कार्य कर रहे हैं सोच समझकर, कोई एक्शन रिपीट कर रहे हैं बार बार, आप सोचिए 30 सेकेंड या 10 सेकेंड का कोई एडवर्टाइजमेंट जो देखना नहीं चाहते, आपके माइंड की स्क्रिप्टिंग को चेंज कर देता है। आप कहें पूरे दुनिया के लोगों के माइंड में ऐसा इंप्रेशन डालता है कि ये प्रोडक्ट ले ही लो, कभी खुश होगे। तो जो काम हम बार बार कर रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका हमारे माइंड पर कितना इंप्रेशन पड़ता होगा हमें पता नहीं है। अगर इसका जो है टेक्निकली ऑब्जर्व करें तो कहते हैं कि हमारे माइंड के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि पूरी दुनिया के लाइब्रेरी में जितने पुस्तक हैं उसके अंदर जितनी इंफॉर्मेशन है उससे भी अधिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है हमारा ब्रेन का सेल्स, सम सेल्स, नॉट कंप्लीट। पूरे लाइफ में हम अपने ब्रेन का केवल 1/3 हिस्सा इस्तेमाल कर पाते हैं। वो भी कौन? जो कि बहुत पावरफुल हो, लाइक सम साइंटिस्ट एंड सम फिलोसोफर। 1/3 हिस्सा। आप सोचिए बाकी का 2/3 हिस्सा अनयूज हो जाता है, यूज ही नहीं कर पाते, बिकॉज दैट इज वेरी पावरफुल। ये जो हमारा माइंड का जो स्क्रिप्टिंग है,
How many of you relate with this? Yes. हमें फॉर एग्जाम्पल कॉलेज का टाइम है 9 o'clock पहुंचना है, अलार्म लगाया है 8:15 का, स्नूज 8:20, स्नूज 8:25, स्नूज 8:30। कहीं अब नहीं रहेंगे तो अपसेट हो जाएंगे, अभी जाना पड़ेगा। ये हम सब का कॉमन है। मोस्टली आप देखेंगे 75% लोगों ऐसे भी अलार्म लगाते हैं अपने मोबाइल में, ऐसे ही अलार्म लगाते हैं। तो क्यों? ये माइंड गेम चल रहा है, माइंड गेम। माइंड क्या कर रहा है? तो रुक जा, मैं उठ गया हूं पूरी तरह, ठीक है, लेकिन 5 मिनट, ठीक है, अभी कंट्रोल में हूं, अभी तो कंट्रोल में हूं, अभी टाइम भी है 10 मिनट, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, फास्ट ब्रश करूंगा, नहाऊंगा, ठीक है, या स्किप कर दूंगा ठंडी भी है, क्या कहते हैं, मैनेज कर लूंगा 5 मिनट और। This is mind. Who is saying mind? Mind is tweaking. अच्छा, आप सोचो 5 मिनट या 10 मिनट में क्या कर सकते हैं? क्या कोई बड़ी बात है क्या? 5 या 10 मिनट सोना कोई बड़ी बात नहीं है, सो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक बार अपने स्नूज करते हैं अपने अलार्म को, आप क्या करते हैं? आप 5 मिनट को वरीयता देते हैं अपने ऊपर। आप ये कहते हैं कि भाई मैं जो डिसाइड करता हूं कुछ काम का नहीं है, 5 मिनट सोना इंपॉर्टेंट है। आप 5 के बाद 15 मिनट सोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने मॉर्निंग में कहा कि आई वांट टू गेट अप दिस टाइम, और सुबह ही आपने स्नूज किया, मतलब सुबह की स्टार्टिंग आपने क्या कहां से किया? लूजिंग से। क्योंकि आपने क्या किया? आपने जो डिसाइड किया था कि ये करना है, ठीक है, आपके माइंड ने इसको कहा तुम्हारा डिसीजन काम का नहीं है, लेट मी कम फर्स्ट। तो अगर आप पहले ही दिन की शुरुआत हारने से कर रहे हैं, इसके लिए कितना हारना है? 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। तो यहां से माइंड गेम शुरू होता है, लूजिंग प्रोपेंसिटी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ठीक है, तो आप एक अलार्म लगाओ और उससे उठ जाओ। आप 10 मिनट बाद का अलार्म लगाओ और उठ जाओ, ठीक है? क्यों? क्योंकि दिस इज नेचुरल टेंडेंसी। माइंड के अंदर ऐसा आपको लगेगा कि नहीं ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या है, लेकिन इसमें है, क्योंकि ये हमारे माइंड के अंदर सबकॉन्शियसली ऐड हो रहा है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमारा कॉन्शियस माइंड और हमारा सबकॉन्शियस माइंड 1000 टाइम पावरफुल है कॉन्शियस माइंड से। कितना? 1000 टाइम्स। इसलिए कहते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आपने उसको सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर दिया, कहते हैं सक्सेसफुल कौन बनता है? सक्सेसफुल करने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत कोई नॉलेजेबल हो तो सक्सेसफुल बन जाएगा, बहुत हार्ड वर्किंग है तो सक्सेसफुल बन जाएगा। नो, डेफिनेटली ऑल दिस फैक्टर आल्सो वर्क्स, बट सक्सेसफुल बनने के लिए आपको क्या करना है कि आप जो चाहते हैं उसको आपको सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर देना है। सबकॉन्शियस माइंड में फीड करने का मतलब वो कहते हैं सोते उठते बैठते हर चीज एक ही समय एक ही चीज याद आती है, ये करना है। क्यों? आप सो भी रहे हैं तो भी ख्याल आता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो जा रहा है, और इसलिए वो हमेशा एक्टिव रहेगा। जब आप कॉन्शियस हैं तब तो आप करोगे अच्छा ये करना है, लेकिन जब आप सो रहे हैं सबकॉन्शियस है, उस समय हमारा माइंड काम कर रहा होता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 1000 टाइम पावरफुल होता है। इसलिए कोई भी काम आप कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कहूं यहां से मेरे घर जाना है, आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप जो है मैप लगा दोगे गूगल मैप और देखते लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, स्ट्रेट एंड दिस, ठीक है? अगली बार जाओगे तो थोड़ा समझ के होगा। लेकिन अगर आप डेली जाते रहो, जैसे आप कभी अपने बाइक पे घर जा रहे हो, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है कि लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, कभी माइंड में आता भी नहीं है। कौन? अपने
आप गाड़ी मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। आपके घर का रास्ता जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिपीटेडली चला जा चुका है, इसलिए आप सोचते भी नहीं हो। टर्न आते ही लेफ्ट टर्न, राइट आते ही राइट टर्न, जैसा आपका घर पहुंचा दे। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज हम कर रहे हैं, ईच एंड एवरी एक्शन इज इंपॉर्टेंट। द फ्रैक्शन इन एक सेकेंड में भी जो आप काम कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता जा रहा है, हमें पता नहीं है फीड हो रहा है। तो ये स्क्रिप्टिंग हर जगह से आ रही है। द काइंड ऑफ बुक वी रीड, the kind of movie we see, the kind of music we listen, the kind of friends we keep. कुछ भी जो हो रहा है, इसे कहते हैं अगर किसी पर्सन के बारे में जानना हो तो व्यक्ति कैसा है, उसके आसपास के 4-5 लोगों के बारे में जान लो, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है। The person is known by his association, उसके चारों तरफ लोग कैसे हैं, इफेक्ट पड़ता है। क्यों? ऑटोमेटिक, आप नहीं भी चाहते हैं आपको प्रभाव पड़ता रहेगा। आप नहीं भी चाहते हैं, आप बार बार किसी से मिलेंगे, उसका प्रभाव पड़ता रहेगा, उसके व्यक्तित्व का, उसके साउंड का, उसके थॉट्स का प्रभाव पड़ता रहेगा। इसलिए कहते हैं जैसा रहेगा संग वैसा पड़ेगा रंग। बिकॉज द एसोसिएशन, बिकॉज ऑफ द लिसनिंग, जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं आसपास, जो भी हम पढ़ रहे हैं, वहां से विचार बन रहे हैं। तो यहां से इंफॉर्मेशन स्क्रिप्ट जाती है हमारे माइंड के अंदर, और ये काम कैसे करता है? गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट, पॉजिटिव इन। मतलब कहने का मतलब अगर आपने माइंड के अंदर कोई निगेटिव चीज डाली है तो सिंपल उसका आंसर है कि अगर निगेटिव इन है तो निगेटिव ही आउट होने वाला है। अगर आपने पॉजिटिव इन किया है तो पॉजिटिव निकलने वाला है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने निगेटिव फील करते जाए और ऑटोमेटिक पॉजिटिव निकल जाएगा। नेवर हैपन। अच्छा जो है अच्छे थॉट्स इनपुट करेंगे तो अच्छे थॉट्स ही बाहर आएंगे। तो अगर हम इनपुटिंग जो प्रोसेस है, इनपुटिंग प्रोसेस, क्योंकि यहां से हमारे माइंड के अंदर इनपुटिंग हो रही है, तो यहां पर ही आपको सोचना है, समझना है। वी नॉट हियर टू टेल यू व्हाट इज गुड फॉर यू, वी आर ओनली टेलिंग द मैकेनिज्म। अभी आपको खुद से समझना है आपके लिए क्या अच्छा है, क्या हो रहा है, डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो इसीलिए नॉलेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान, नॉलेज इज पावर। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? रेज योर हैंड। ज्ञान शक्ति है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ज्ञान अगर शक्ति है तो आप में से कितने लोगों को ये बात पता है, ज्ञान है कि भाई सुबह सुबह टाइम से जल्दी उठना चाहिए? इसका ज्ञान कितने लोगों के पास है? रेज योर हैंड। ओके, थैंक यू। कितने लोग सुबह जल्दी इस ज्ञान जानने के बाद भी वो ज्ञान जो कि शक्ति है आप उठ पाते हैं? some rare soul, very nice. अच्छा, अभी बदल देते हैं प्रश्न। कितने लोगों को ये ज्ञान है कि सेमेस्टर स्टार्टिंग से ही सिलेबस पढ़ना चाहिए? रेज योर हैंड। अभी आप समझ में मैं क्या पूछने वाला हूं। कितने लोग सेमेस्टर बिगिनिंग से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं? हर बार सिनेरियो क्या होता है हमारे पास कि अभी एग्जाम आ गया और एग्जाम के बाद हम सभी कहीं ना कहीं जाते हैं, भगवान इस बार निकालते, अगली बार फर्स्ट पहले दिन, पहले सेमेस्टर फर्स्ट डे से ही मेहनत करो और फिर वो दिन भी आता था। ओके, अभी तो टाइम है।
और ऐसे करते करते फिर लास्ट टाइम पे क्या होता है कि अब बुक का जो है स्टैपलर वो खोलना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम आ गया है, फिर 1 नाइट फाइट करना पड़ता है। सबको पता है, सबको ज्ञान है, और आप सब कह रहे हैं कि ज्ञान शक्ति है, फिर वो शक्ति कहां गई? फिर कौन सी शक्ति? ऐसी शक्ति जो हर बार फेल कर रही है? एक्चुअली यस, नॉलेज इज पावर अंटिल एक बार क्या हुआ कि डॉक्टर ने, एक पेशेंट था, वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा मेरे को ये प्रॉब्लम है, करने का ऐसा करो, ये दवा लो, ठीक है, और ठीक हो। तो 3 दिन के बाद पेशेंट का फोन आया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर साहब आपको याद है मैं आपके पास आया था, आपने मेरे को मेडिसिन दी थी, मेरे को ये सिम्टम्स था। डॉक्टर ने कहा यस यस यस, ठीक हो गए? उसने कहा नहीं, ठीक नहीं हुआ। उसने कहा मैंने जो दवा दी थी आपने ली? मैंने कहा हाँ यस डॉक्टर मैंने ली है, अभी भी मेरे जेब में पड़ी हुई है, ये लो। तो भाई दवा तो ली, लेकिन दवा जेब में रखने से काम होगा क्या? यू हैव टू टेक इट, स्वालो, अंदर खानी पड़ेगी। इसी तरह नॉलेज पावर है, लेकिन तब तक पावर वो नहीं बनेगी जब तक कि आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे। सभी को ज्ञान होता है, देखो सबको पता होता है कि हाँ ये है, लेकिन nobody is applying. The right statement, remember, the right statement is when the knowledge is applied, then it becomes power. Otherwise, हमारे पास रिवॉल्वर है और सामने से दुश्मन आ जाए, रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर रखने से थोड़ी बात, शूट भी करना पड़ेगा, ये वही बात है। तो क्या कहते हैं, नॉलेज आस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान, ये ज्ञान जो है हमारा जो शक्ति है, ये जो नॉलेज आस्पेक्ट। तो 2 तरह के नॉलेज होते हैं, एक होता है मटेरियल नॉलेज और एक होता है स्पिरिचुअल नॉलेज। एक संस्कृत मटेरियल अपरा, स्पिरिचुअल परा विद्या। तो परा एंड अपरा दोनों 2 नॉलेज है, एक भौतिक ज्ञान है और एक आध्यात्मिक। अच्छा, हम बात करते हैं आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मीन्स क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल मीन्स that you have to wear some dhoti kurta or a sari and some have to some put tilak and isha, all these things? No, it's only rituals. ठीक है, ये पहनना एक रिचुअल हो सकता है, but it's not a spiritual. Spiritual has 2 words, spirit and ritual. Spirit and ritual. Ritual मतलब कोई भी कार्य। If you are doing any ritual, if you are doing any work, and if you know the reason why are you doing this, क्यों कर रहे हो भाई ये काम, अगर आपको मेन रीजन यानी रूट रीजन पता है, इसका मतलब आप स्पिरिचुअल। इफ यू जो भी द स्पिरिट बिहाइंड द रिचुअल्स, उसे कहते हैं स्पिरिचुअल। अगर आप काम किए जा रहे हो, काम करें, क्यों किया जा रहा है? उसने बोला था, वो काम है, आप स्पिरिचुअल नहीं है। इसीलिए जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो उसमें एक हमारे वेद में एक सूत्र है, वो सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इट मींस कि जो जिज्ञासा, इंक्वायरी, व्हाई, क्यों है ये, क्यों, ये जो क्यों क्वेश्चन है, क्यों है, हम क्यों है, क्या, किस लिए, ऐसा प्रश्न, ये इंक्वायरी होता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मींस नॉट मैंने कहा और अब फॉलो करना, वहां है क्यों करें भाई, किस लिए करें। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको किसी भी नॉलेज में आपको चैंपियन बनना है, कोई भी नॉलेज हो, चाहे आपके मैथमेटिक्स का हो, थर्मोडायनेमिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, कंप्यूटर साइंस का हो, जावा हो, डॉटनेट हो, पीएचडी, जो भी, आपको किसी में भी मास्टरी हासिल करनी है तो आपको एक कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा, 4WH प्रिंसिपल। 4WH मींस WWWH, and 4WH means all this interrogative। WW क्या, क्यों, कब, किस लिए,
और इसके बाद आता है हाउ। अभी जैसे हम अपनी पढ़ाई करने के बाद हम कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, बड़ा समस्या होता है। क्यों? वहां पर हमें कहा करो, इसको करना है, अभी बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि अभी हमें यह पता नहीं हाउ से पहले कैसे करना है। वहां तब तक आप डरेंगे, तब तक विजन क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको पता नहीं है व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट क्या है, क्यों है भाई, क्यों। अच्छा, पता चल गया क्या है, क्यों है। अब पता करना है कि इसे कहां अप्लाई करेंगे, और कहां भी पता चल गया तो होगा कि कहां भी कब अप्लाई करेंगे, व्हेन। और जब ये सारी चीजें आ गई और तब आप पता करो हाउ, कैसे अप्लाई करें, कैसे करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी टॉपिक ले लो और ये 5 चीजें अपने आप से पूछो, क्या है, क्यों है, कब करेंगे, कैसे करेंगे। अगर आपको ये सारी आंसर आपको आता है तो आप समझ जाओ ये टॉपिक आपका क्लियर है। ये तरीका होता है किसी भी टॉपिक को जानने का। तो कहने का मतलब हमारे पास भौतिक ज्ञान भी है और आध्यात्मिक ज्ञान है। व्हाट इज द डिफरेंस? भौतिक ज्ञान, कोई भी ज्ञान हम करते हैं, अगर हम आपसे कहें आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, व्हाई यू आर स्टडी, तो क्या उत्तर होगा? टू गेट अ डिग्री। डिग्री क्यों चाहिए? जॉब क्यों चाहिए? मनी, पैसे के लिए। पैसे क्यों चाहिए? सो दैट वी कैन इंप्रूव आवर लाइफस्टाइल। हैविंग अ बॉस, लॉन्ग Lamborghini, wearing a Giorgio Armani, and having a very like the most advanced phone or whatever, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Having a luxury or a good lifestyle, there is no any problem. But the thing is that कि जीवन शैली के अंदर जीवन भी है। जीवन शैली के अंदर क्या है? जीवन है। कई बार ऐसा क्या होता है कि जीवन शैली को इंप्रूव करते 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 जीवन जीना ही भूल जाते हैं, और जब तक इंप्रूव होता है तब तक पता चला अभी हमारे पास समय ही नहीं बचा। तो जीवन शैली इंप्रूव करिए तो जो भौतिक ज्ञान है वो आपको बताता है हाउ टू इंप्रूव योर लाइफ स्टाइल विथ अर्निंग सम मनी, और स्पिरिचुअल नॉलेज आपको बताता है हाउ टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। आप देयर आर सो मेनी एग्जांपल। अभी हाल ही में क्या सुशांत, क्या नाम था सुशांत, he was having a great following, fans, पैसा, रुतबा, सब कुछ, commit suicide। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर मर्डर हुआ था, ठीक है। माइकल जैक्सन, आप सबने नाम सुना होगा। When he was 16, उसके 16वें बर्थडे पर गवर्नमेंट ने स्पेशल पोस्टल का जो बड़ा बड़ा जो लॉरी होता है, ट्रक, 5 ट्रक्स ऑफ ग्रीटिंग्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप सोचिए 5 बड़े बड़े ट्रक ग्रीटिंग विशेष उसके सामने घर पे भेजे गए। He was so famous even when he was young even, and he committed suicide. It means lifestyle is necessary, but lifestyle is not is like वो आपकी गारंटी नहीं है। It is not guaranteed to make a quality of life. सुविधा बढ़ने से सुख नहीं आता। अगर केवल सुविधा बढ़ने से सुख आ जाता, नहीं आता। सुख, हैप्पीनेस इज द डिफरेंट टर्म्स, सुविधा इज द डिफरेंट टर्म्स। यस, इट विल हेल्प यू, लेकिन कहने का मतलब कि जीवन शैली को बढ़ाने में जीवन जीना भूल जाए तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो स्पिरिचुअल जो चीज है, स्पिरिट वो जीवन के ऊपर कंसंट्रेशन करता है। भौतिक जीवन जो भौतिक एजुकेशन नॉलेज वो जीवन शैली पर करता है।
क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। जो मटेरियल नॉलेज है वो हमारा क्वांटिटी की कहता है, मात्रा बड़ा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अगर फोन भी रखना है तो छोटा क्यों रखे? 888 स्नैपड्रैगन with having a 12 GB of RAM and having a 1 TB of ROM with chassis Sony camera with some latest megapixel of specification। एक बार एक लड़के ने, एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा, तुम्हारे फोन में क्या है? मेरे फोन में, मेरा फोन आईफोन A13 with A15 Bionic chipset, ठीक है, with this RAM, that RAM, सारा चीज बता दी। उसने पूछा अब तेरे फोन में क्या है? उसने कहा मेरे फोन में बैलेंस है। So even having so much, if you don't have a quality, then quantity is useless। इसलिए अगर इसलिए कहा जाता है आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ो उसमें कोई भी एक सब्जेक्ट में क्वालिटेटिव नॉलेज ले लो तो आप कहीं भी जाकर क्रॉस कर सकते हो। क्वालिटी इसलिए कहते हैं कि जब भी जो हम केवल क्वांटिटी के बेस पर वर्क करते हैं, हमें क्वांटिटी चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये दिल मांगे वो, लेकिन क्वालिटी, स्पिरिचुअल नॉलेज इज बेस्ड ऑन द क्वालिटी, क्वालिटेटिव होना चाहिए। हम चाहते हैं अपने आप को साबित करना, हम कुछ हैं, ये हम दिखा देंगे, हम दिखा देंगे कि हम भी कुछ हैं। जैसे ही प्रूव करने का टेंडेंसी है, दैट इज अ मटेरियल टेंडेंसी। अगर आप प्रूव करने जाएंगे तो वहां पर कहते हैं कि इफ यू आर कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन प्रूविंग योरसेल्फ, तो क्या होगा, आप दूसरे के सर पर पांव रखकर जाएंगे, कट थ्रोट कंपटीशन, दूसरों का गला काटकर आगे बढ़ने की टेंडेंसी आ जाएगी, सेल्फिशनेस आ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि अगर आप प्रूव करने की कोशिश करोगे, देन यू बिकम बिटर एंड बिटर एंड बिटर, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू इंप्रूव योरसेल्फ, देन यू बिकम बेटर बेटर एंड बेटर। प्रूव में क्या है, दूसरों को दिखा देंगे, इंप्रूव में क्या है, खुद को दिखाएंगे। अगर आप केवल दूसरों के लिए, अब यहां पे माइंड क्या कर रहा है, वैसा करना है, वैसा होना है, उसकी जगह पे हम देखें कि कोई बात नहीं, अब दूसरों की तरह बनने में समस्या क्या है, समस्या ये है कि हम कुछ भी कर लें दूसरों की तरह बन ही नहीं सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा हमारा मैन्युफैक्चरिंग है कि वी आर ए यूनिक लिविंग एंटिटी। हम जैसे हैं वैसा और कोई नहीं होगा, हर इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी। When I was in class 6, मैंने एक पोइट्री पढ़ी थी इंग्लिश में, द माउंटेन एंड द स्क्वेरल। तो वहां पे जो माउंटेन है वो उस स्क्वेरल को कहता है कि मैं इतना बड़ा हूं, पूरे जंगल को अपने पीठ पर रखता हूं, और तुम इतनी छोटी सी हो, तुम्हारा मेरे सामने तुम्हारी क्या वैल्यू है। तो जो गिलहरी है, वन रिप्लाइड, यू आर अ डकलेस वेरी बिग। गिलहरी ने कहा कि तुम निश्चय बहुत बड़े हो। इफ आई एम नॉट लार्जर एज यू, यू आर नॉट शॉर्ट एज मी। अगर मैं तुम्हारे इतना बड़ा नहीं हूं तो तुम मेरे इतने छोटे भी नहीं। अगर आप पूरे जंगल को अपने पीठ पे धारण कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती हूं, लेकिन तुम एक अखरोट तोड़ के दिखाओ, अभी अगर अखरोट तोड़ के दिखाओ। और फिर डिस्क्रिप्शन में जो राइटर है, पोएट्री राइटर, पोएट, वो कहते हैं all the things and weather must be taken in together to make a region sphere। कि जैसे अलग अलग मौसम बनकर एक साथ बनाता है, अलग अलग वस्तुएं मिलकर एक पूरा संसार बनाती हैं। तो टैलेंट्स डिफर, हर व्यक्ति में अलग अलग टैलेंट है। अगर हम किसी से पूछें कि आपकी फेवरेट एक्टर कौन है, आपके फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, आप बताओगे मैंने दिस एंड दैट, क्या क्यों, पूरा कई बार पूरा ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अगर हम पूछें व्हाट इज स्ट्रेंथ, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ, आपकी क्या खासियत है, कई बार हम डम हो जाएंगे। मेरे में मैं आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। तो
वही घिसा पिटा डायलॉग आएगा, बोलने के लिए बोलने के। आप में क्या कमियां क्या है? व्हाट इज योर वीकनेस? वो वीकनेस जो आपको रोक कर रही है आगे बढ़ने से। आप बोलेंगे सर मेरी वीकनेस क्या है? मेरी वीकनेस है कि मेरे को दोस्त के घर जाकर समोसा खाने, दोस्त के पैसे पर समोसा खाना मेरी वीकनेस है। बट हार्डली वी नो बिकॉज वी आर कंटिन्यूअसली वर्किंग। अभी हम इसके आगे हम ये बात करेंगे कि क्यों ऐसा है। हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इम्प्रूव मतलब कि आज कल आप जहां थे आज उससे बेहतर हैं या नहीं है। अगर आप इम्प्रूव की बात करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप प्रूव हो जाएंगे। कोई भी महानतम व्यक्ति जो है हमेशा अब किसी दूसरे से कंपीट नहीं करता है, खुद से कंपीट करता है। और इस तरह इंप्रूविंग, दिस इज द डिफरेंस। गो थ्रू लाइफ, भौतिक जीवन में गो थ्रू लाइफ। कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छा है, लास्ट वाला नहीं, थर्ड वाला तो बहुत अच्छा है। गो थ्रू लाइफ क्या कहते हैं? चलती का नाम गाड़ी और बढ़ती का नाम गाड़ी। चलते जा रहे नो, जीवन तो ऐसे चलते ही रहेगा। दिन, समय, महीना, पल और साल निकलते जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण है कि आप जीवन के साथ जा तो रहे हैं, गो, लेकिन ग्रो हो रहे हैं या नहीं, ग्रोइंग हो रहा है या नहीं। एक बार एक छोटे बच्चे ने, जो बटरफ्लाई होता है, जब बटरफ्लाई का बर्थ होता है तो ककून के अंदर होता है। बच्चे ने देखा कि बटरफ्लाई स्ट्रगल कर रही है उससे निकलने के लिए। उसने सीजर लिया, ककून को काट दिया और वो बहुत आसानी से निकल गया। लेकिन उसने कभी भी अपने जीवन में फिर खुला आसमान नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो जो स्ट्रगलिंग है, वो स्ट्रगलिंग में ही उसके फेदर डेवलप होते हैं। हम चले जा रहे हैं लेकिन ग्रोइंग, स्ट्रगलिंग, नहीं स्ट्रगल होगा, चलता रहे। समस्याएं ये कि हमेशा आपके कंडीशन, सिचुएशन हमेशा आपके अनुकूल नहीं रहेगा, कभी प्रतिकूल भी होगा। आर यू रेडी? एक बार एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन थे, सक्सेसफुल। एक रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने आया और उसने पूछा, सर क्या मैं आपकी सफलता का राज जान सकता हूं? तो उन्होंने कहा यस श्योर। उन्होंने कहा मेरी सफलता का राज है 2 वर्ड, ओनली 2 वर्ड। रिपोर्टर ने कहा कि बताइए, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा राइट डिसीजन। मैंने राइट डिसीजन लिया, इसलिए मैं सफल हूं। रिपोर्टर कुछ और सुनना चाहता था। उसने कहा ओके, मुझे पता है, बट may I know how you have taken the right decision? What is the secret behind this? आप जनता को बताएंगे? उसने कहा यस, 1 word। रिपोर्टर बहुत ही, क्या बता सकते हैं क्या? यस, 1 word is an experience. With experience I have taken right decision and that's why I am successful. रिपोर्टर थोड़ा मायूस सा हो गया। उसने कहा अंतिम प्रयास करते हैं, शायद कुछ अंदर की सीक्रेट बता दें, कैसे इन्वेस्ट किया, क्या किया, बिजनेस कैसे किया। सर वी एक्चुअली रियली वांट टू नो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड हैविंग दिस एक्सपीरियंस। उसने कहा देखो आज तक मैंने ये किसी को नहीं बताया है, आप जानना चाहते हो? उसने कहा यस। उन्होंने कहा 2 वर्ड, रॉन्ग डिसीजन। I have taken so many wrong decisions and I have gained experience, अनुभव हुआ, and with that experience I have taken a right decision and now I am a successful person. Because that the growing life के through grow होना। कई बार हम समय निकलते जा रहे हैं लेकिन हम time is also is energy. Time is an energy also. If you are passing, if you are killing the time, then the time will come, then time will kill you. समय जो है, अगर हम समय को वेस्ट करेंगे तो समय हमें वेस्ट कर देगा। If you are invest the time, then
the same time will invest you. Information, material knowledge talks about the information, सूचना, ये चाहिए, वो चाहिए, सूचना ले लो यहां से वहां से यहाँ। लेकिन केवल सूचना लेने से आप बहुत, जैसे अगर आप कभी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां पर कई बार क्या करते हैं, हम अपने रिज्यूमे में पूरा 3 पेजेस का बना देते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला हमारे रिज्यूम देखकर इंप्रेस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपने कितने उसमें इंफॉर्मेशन दें, इससे कोई इंप्रेशन कुछ नहीं पड़ता होता है। मतलब है कि आपने उसमें कौन सा इंफॉर्मेशन जो है ऐसा लिखा है जो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, या जिस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप उसके कार्य में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। इसलिए इंफॉर्मेशन से अधिक महत्वपूर्ण है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बदलाव। सुभाषिता में संस्कृत में एक श्लोक है, इसमें कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। कहते हैं कि हाउ टू नो, ये कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल है। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नॉलेजेबल है, बहुत ज्ञान है, तो वो क्या होगा, ही मस्ट विनय सबमिसिव होगा, विनम्र होगा। कहते हैं जैसे पेड़ पर फल लग जाते हैं तो पेड़ झुक जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि आई एम दिस एंड दैट, आई एम PhD होल्डर, आई एम CEO, नीचे देखते हैं बिकॉज ऑफ द ईगो, आई एम दिस, आई एम possessing this, that is not a real knowledge. Knowledge means a person is vinay, humble, and then the vinayad yati patrata, और वो humbleness उसको क्या बनाएगा, पात्र मतलब योग्य बनाएगा। तो अगर किसी के पास ज्ञान है लेकिन बदलाव नहीं हो रहा है, वही मैंने कहा, किसी के पास दवा है ठीक नहीं हो रहा है, मतलब आपने दवा लिया नहीं। तो इंफॉर्मेशन तब जब ट्रांसफॉर्मेशन में हो जाए, दैट इज द रियल नॉलेज। एंड और जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारे पास क्लैरिटी नहीं रहेगी, किसी भी चीज की क्लैरिटी नहीं रहेगी। द गैप बिटवीन नॉलेज एंड एक्शन, ज्ञान जो आपने सीखा, कई बार लोग पूछते हैं सर हमने ये पढ़ा साइन थीटा कॉस थीटा दिस दैट, अभी इसको अप्लाई कैसे करेंगे, हमें पता नहीं है। क्या इवन अभी रिसेंटली IIT दिल्ली में इस पर एक पूरा वर्कशॉप कंडक्ट हुआ। हम जो पढ़ रहे हैं, तो क्या कहते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो चुका है जहां को प्रैक्टिकल नॉलेज में कमी है। धीरे धीरे इस पर काम हो रहा है कि हम जो पढ़ रहे हैं हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर पाए, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कि हम, और क्योंकि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं है, गैप है, और इसलिए डिग्री लेने के बाद हम सोचते हैं कि स्ट्रगल होता है हमें इंटरव्यू के लिए, कहीं सिलेक्शन पे जाने के लिए, बिकॉज ऑफ क्लैरिटी। अगर क्लैरिटी नहीं है तो आपके पास, आपको डर लगेगा, आप पावरलेस महसूस करेंगे, आप फोकस आपका नहीं रहेगा। और अगर ये सारी चीजें जैसे ही नहीं आएंगी तो ये सारी चीजें हमारे माइंड को प्रभावित करती हैं। और माइंड में एक और चीज है, हमारा माइंड, वी आर वेरी आत्म केंद्रित। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सीधी सीधी बात कहें, सेल्फिश मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं, ये मेरा, ये मैं, ये मेरा, मैं मेरा, मैं। एक बार एक बच्चे ने अपनी माँ से, छोटा बच्चा था, अपनी माँ के पास गया और बोला, मम्मी मम्मी आई लव यू वेरी मच। मम्मी, छोटा बेटा आई लव यू टू बेटा। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और 16 साल का होता है, और जाके फिर से मम्मी से, मम्मी मम्मी आई लव यू वेरी मच। मम्मी कहती है कितने पैसे चाहिए बता। बेटा थोड़ा और बड़ा हो गया, नाउ इज 21। कहता मम्मी मम्मी आई लव यू वेरी मच। कौन है बता दे, बता। बेटा और बड़ा होता है, नाउ इज 40। मम्मी मम्मी आई लव यू वेरी मच।
बोला था उससे शादी मत कर। सुना नहीं था। बेटा और बड़ा हो गया, मतलब ये 60 and he went to his mom, मम्मी I love you very much। मम्मी कहा मैं किसी भी कागज पर सिग्नेचर नहीं करूंगी। This is scenario of मैं हर जगह मैं 16 साल से लेकर 60 साल हम हर जगह कैसे हम देखते हैं कि ये मैं और बाकी की दुनिया, पूरे दुनिया का केंद्र बिंदु मैं हूं भाई। How this might work? लेकिन जब तक ये मेंटालिटी रहेगी, आप हर जगह फ्रस्ट्रेशन आपको मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन। एंड दैट्स व्हाई इसलिए कहते हैं अवॉइड, इस मैं को अवॉइड करना है। और अवॉइड कैसे करेंगे? बी रियलिस्टिक इन योर एक्सपेक्टेशन। हमने इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन बना रखी है, या हम चाहते हैं हम एक सब लोग मेरे को सलाम करें, सलाम साहब, सब जहां, तो वी डोंट वांट टू सर्व। लेकिन जब तक ये आई टू यू की जरूरी नहीं होगी, जब तक आई टू वी की जरूरी नहीं होगी, पूरे वैदिक लिटरेचर का अगर कहा जाए व्हाट इज द समरी, तो समरी में हम कहते हैं कि समरी इज, अभी मंत्र स्टार्टिंग में जो रामकृष्ण मिशन का मंत्र चल रहा था उसमें उन्होंने कहा बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। बहुजन सुखाय सभी के लिए हैप्पीनेस, और बहुजन हिताय मतलब सभी का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये क्या है, मोटो, ये क्या है, मैं की जगह पर वी, हम। तो जब तक ये जर्नी नहीं जाएगी तब तक हमारा माइंड में जो स्ट्रेस क्या होता है, हमेशा हम अपने मैं के ऊपर कार्य करते हैं। तो मी एंड माइंड हमेशा मैच चलता रहता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहते रहेगा मैं, और इसके कारण स्ट्रेस आएगा, ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स इन माइंड स्ट्रेस कम। और ये जब स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस करेगा क्या? स्ट्रेस क्या करता है? ये हमारे इनिशिएटिव को समाप्त करता है, हम कुछ आगे बढ़ने का कार्य भूल जाते हैं। स्ट्रेस मे नॉट किल यू, बट स्ट्रेस डेफिनेटली किल योर इनिशिएटिव। आप हमेशा पीछे रहेंगे कुछ इनिशिएट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ड्यू टू द स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योर लाइफ इज फुल ऑफ सिचुएशंस एंड सिचुएशंस। हमारे जीवन में सिचुएशन ही सिचुएशन, कई अच्छी कई बुरी, जो हमारे हाथ में नहीं है। हमने डिसाइड नहीं किया भाई हमें कहां पैदा होना है, हमने डिसाइड नहीं किया, हमें ऑटोमेटिकली मिला, वहां पर हमारा हाथ नहीं है। तो सिचुएशंस हैं अच्छी बुरी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो सिचुएशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, जो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, मैनेजेबल नहीं है, जो वो क्या होता है, द सिचुएशन दैट यू कैन नॉट मैनेज बिकम प्रॉब्लम्स। जो सिचुएशन आपने मैनेज नहीं किया वो समस्या बनेगा। ऐसी समस्याएं, द प्रॉब्लम दैट क्रिएट नेगेटिव फीलिंग्स इन योर माइंड। फिर प्रॉब्लम क्या करेगी? माइंड के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स लाएगी, और वो क्या करेगा? डर पैदा कर देगा। दैट लीड्स टू फियर। प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम से डर आ गया। अब डर, फियर, दिस माइल्ड फियर अभी थोड़ा है, माइल्ड है, माइल्ड सिम्टम्स। माइल्ड फियर इन सबकॉन्शियस माइंड, अभी तक वो ये ऊपर ऊपर था, लेकिन अब सबकॉन्शियस माइंड में ये चला गया, एंड दैट बिकम्स वरी, चिंता। अब आप चिंताग्रस्त हो गए, चिंता सताने लगी। अब ये जो वरी है, वरी बिल्ड्स अ प्रेशर। अब ये प्रेशर जनरेट करेगा कहां पर? हमारे माइंड और बॉडी दोनों पर।
जब हमारे माइंड और बॉडी दोनों पर प्रेशर आ गया है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। अगर केवल माइंड पर आ रहा है और केवल बॉडी पर आ रहा है, केवल बॉडी पर अगर स्ट्रेस है तो हम उसे कहते हैं स्ट्रेन, और अगर केवल माइंड पर है तो हम उसे कहते हैं टेंशन। केवल बॉडी पर है तो स्ट्रेन, केवल माइंड पर है तो टेंशन है, ठीक है। लेकिन दोनों पर आ गया तो है स्ट्रेस, मोर डेंजरस देन स्ट्रेन एंड टेंशन। एक टेक्निकल मैं बता रहा हूं कैसे काम, लेकिन ये काम कहां से कर रहा है? तो अगर आपके पास स्ट्रेस है किसी भी तरह का, इसका रूट कॉज क्या है? सिचुएशंस। और वो सिचुएशन जो हम मैनेज नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन जो हमारे हाथ में है ही नहीं, और उसके लिए हम स्ट्रेस ले रहे हैं। तो ये सिचुएशंस जो है, मैनेज द प्रिवेलिंग सिचुएशंस। अगर हम सिचुएशन पर ही अटैक कर दें, सिचुएशन अभी प्रॉब्लम ही ना बनने दें, फियर में कन्वर्ट नहीं होने दें, तो फिर वो स्ट्रेस या की बात नहीं आई। सिचुएशन पर हम फोकस करें। जैसे कई बार हम कहते हैं, देखिए, अगर कोई सिचुएशन हमारे, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर बहुत समस्या है, तो आप पूछिए कि क्या मैं इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए कुछ कर सकता हूं या कुछ कर सकती हूं? अगर उत्तर है यस, तो करिए। फिर स्ट्रेस या चिंता या डर की बात क्या है, करते रहो। डर की क्यों होता है? डर हमें होता है फ्यूचर का सोचकर, क्या होगा, क्या होगा, वो हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैक्सिमम टाइम हम पास्ट के गलतियों के कारण और फ्यूचर में होने वाली चीज जो हुई नहीं है, उन दोनों के कारण हम स्ट्रेस में रहते हैं, और जो प्रेजेंट है उसमें कुछ नहीं कर रहे। पास्ट के लिए रोना रो रहे होते हैं, अगर मैं ऐसा हुआ होता, ठीक है, तो मैं ऐसा होता। लेकिन प्रेजेंट में हम नहीं हैं, हम हमेशा पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर में जी रहे हैं। बी इन प्रेजेंट। बी प्रेजेंट मीन्स यू हैव टू मैनेज द सिचुएशन। परिस्थिति डेफिनेटली हर परिस्थिति अनुकूल नहीं रहेगी। डिफिकल्ट सिचुएशन विल कम एंड इट शुड कम, आनी भी चाहिए। डिफिकल्ट सिचुएशन आनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं आएगी, जैसे अगर एग्जाम नहीं आएगा तो आप आगे प्रमोट नहीं होंगे। आप, इसलिए कहते हैं एकांत में शिक्षा होती है और भीड़ में परीक्षा होती है। शिक्षा के लिए एकांत में कुछ भी करें, लेकिन उसके लिए आपको कहीं ना कहीं टेस्ट देना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। एंड एग्जाम एंड टेस्ट वो क्या है? वो है, वो फेवरेबल नहीं है, एक्चुअली कोई चाहता नहीं है। अगर ऑप्शन दिया जाए, इसीलिए देयर आर सो मेनी जोक्स आर कमिंग फॉर द 21st बैच ड्यू टू द कोरोना बैच। यानी कोरोना, ये कोरोना बैच का है, बिना एग्जाम के पास हो गया, ऐसा कई बार। सो मेनी बट नीड। सो स्ट्रेस, ये जान लो, कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा कि आप जीरो स्ट्रेस, कभी नहीं होगा, पूरे जीवन में नहीं होगा जीरो स्ट्रेस। आप कभी भी ये, यू कैन नेवर बी जीरो स्ट्रेस इंडिविजुअल। क्यों नहीं हो सकते हैं? बिकॉज यू आर एम्बिशियस। हम सबके पास कुछ इच्छाएं हैं, एम्बिशन है, महत्वाकांक्षाएं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। हम बिजी भी हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लर्न टू मैनेज स्ट्रेस बाय लर्न टू लव वेदर यू डू। मैनेज स्ट्रेस कैसे? बाय लर्न टू लव वेदर यू डू व्हेन यू कैन नॉट चेंज। जब बदलाव नहीं कर सकते हैं, उस समय भी द पीपल अराउंड यू बेटर चेंज योरसेल्फ। आपके आसपास जो लोग हैं उसको बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करिए? खुद को बदल लीजिए। इसलिए कहते हैं, एक बार जैसे बॉइलिंग वाटर है पानी में, उसमें हमने जो है पोटैटो डाला,
पोटैटो क्या करता है? स्ट्रगल करता है, और उसका परिणाम क्या होता है कि अब उस पोटैटो को बाहर निकाल के कोई भी स्मैश कर सकता है कि उसने परिस्थिति से क्या किया? संघर्ष किया, बदलने का। लेकिन उसी बॉइलिंग वाटर में हमने शुगर डाल दिया। शुगर क्या किया? उस बॉइलिंग वाटर में गया और उसने शुगर जो वाटर है उसका, उस वाटर की जो पहचान है उसको बदल दिया। अब वो क्या कहलाएगा? शुगर वाटर, या सॉल्ट डाला, सॉल्टी वाटर। उसने क्या किया? उसने सिचुएशन को अडॉप्ट करके सिचुएशन ही बदल दी। हमें क्या करना है कि जब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगेंस्ट है, ऑब्स्टिकल्स है, उस समय हमें क्या करना है? हर जगह अगर आप बदल सकते हो तो बदल दो, नहीं बदल सकते तो खुद को बदलना पड़ेगा। और फिर डोंट फाइट फॉर स्टोरिंग मोर एंड मोर थिंग्स इन योर लाइफ, एंजॉय व्हाट यू हैव। जो है पहले उसको यूटिलाइज कर दो, बिकॉज दिस इज द लॉ। हमारे पास जो है वो इस बात का सबूत है कि हम उतने के ही लायक हैं। जैसे कई बार करेंगे, अगर आपके पास जो है, इफ यू आर यूटिलाइजिंग योर स्ट्रेंथ, योर मेमोरी, देन यू विल गेट मोर स्ट्रेंथ, मोर मेमोरी। इफ यू आर यूटिलाइजिंग योर मनी, देन यू विल गेट मोर मनी। इफ यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम, देन यू विल गेट मोर टाइम। हमें कई बार लगता है हमारे में समय ही नहीं है करने का। कोई बिजनेसमैन कहता है पैसा ही नहीं करने का, कोई कहता है मेरे पास पावर ही नहीं है, शक्ति नहीं करने का, क्षमता कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज जितना है उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। जितना है 2% है उसको यूटिलाइज करो, देन यू विल गेट मोर। अगर कभी किसी को लगता है कि मेरे पास समय का अभाव है, किसी को लगता है कि मेरे पास मेरी बुद्धि उतनी काम नहीं करती है, किसी को लगता है कि मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है, इसका मतलब है जो स्ट्रेंथ, जो मेमोरी, जो आपके पास व्हाटएवर द थिंग्स, चाहे वो पैसा हो, समय हो, कुछ भी हो, आपके पास जो है उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जिसने भी यूटिलाइजेशन किया वो कभी ये नहीं कहता है कि मेरे पास कम है, वो आगे बढ़ता है। कहते हैं इसीलिए जो है पहले उसको एक्सेप्ट करिए, एंड रिमेंबर सिंपल इज ऑलवेज पावरफुल एंड कॉम्प्लिकेटेड इज ऑलवेज। ये जो चीजें हैं इसके लिए एक एनालिसिस है, जिसे कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। आप सबने सुना भी होगा। कंसंट्रेट ऑन योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है उस पर कंसंट्रेशन करना है। रिकॉग्नाइज योर वीकनेस, कमियां क्या है हमारी उसको पहचानना है। अपॉर्चुनिटी कम्स टू एवरीवन, ऑलवेज रिमेंबर, अवसर सबके पास आता है। अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करना है और ट्रीट्स, कुछ समस्या होगी उस पर रिसर्च करना है। ऑल दिस थिंग्स इज इन योर हैंड। अगर हम ये नहीं करते हैं तो इससे जो सिचुएशन होती है वो हमारे डे टू डे लाइफ पर प्रभाव डालती है, एंड इट बिकम्स कैंसर ऑफ माइंड। कौन सी वो सिचुएशन है? 3 वेरी पावरफुल। वो सिचुएशंस क्या है? कंपेयर, कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज। ये हमारे माइंड का कैंसर है। अब हम कोई भी स्ट्रेस में है या होगा, वो इन्हीं तीनों के कारण ही होगा, इसके अलावा कोई रीजन नहीं। क्या है कि कुछ कंपैरिजन चल रहा है, नहीं कुछ कंप्लेन है मेरी, कुछ क्रिटिसिज्म है, आलोचना, वो ठीक नहीं, ये नहीं ठीक है। कैसे? थोड़ा सा आई विल टेक ओनली 5 minutes more and I'm just going to conclude। बस इनको हम थोड़ा और ओपन अप करके देख रहे हैं इसके अंदर क्या है। कंपेयर, तुलना, हमेशा हम तुलना करते हैं, वो ये है ऐसा है ऐसा। अच्छा, तुलना का मतलब ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप रोल मॉडल नहीं बनाओ, क्योंकि अगर हम रोल मॉडल बनाएंगे तो हम वो क्या है? लर्निंग। हम किसी को देखकर उससे लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वहां पर कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आप हमेशा कंपैरिजन करते रहते हो, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये है, तो वो समस्या आती है। कंपेयर क्यों हम करते हैं? इसके सिम्टम्स क्यों हैं?
हम कंपेयर कर रहे हैं एजुकेशन पर, स्किल्स पर, टैलेंट्स पर। उसके पास अधिक एजुकेशन, उसके पास ये स्किल है, उसके पास ये टैलेंट है, मेरे पास नहीं है। वहां से स्ट्रेस अंदर आना शुरू हो जाता है। अरे भाई, पहले हमने बताया टैलेंट्स डिफर, टैलेंट्स डिफर। अब अभी पहाड़ ने कहा कि तुम अपने पीठ पर जंगल धारण करो, गिलहरी ने कहा कि ठीक है तुम अखरोट तोड़ के दिखाओ। टैलेंट्स डिफर, व्हाई यू आर कंपेयरिंग? सर्च योर टैलेंट। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत हायर एजुकेटेड है तो ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिकॉज एजुकेशन इज नॉट ओनली द डिग्री, एजुकेशन मीन द ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमने पहले ही किया। इंफॉर्मेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन। पावर कब है? जब अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन के लिए और कंपैरिजन किसके लिए होता है? पैसे, वेल्थ। बहुत धनी है भाई, मालदार है, उसकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है। हम कहां साइकिल पर जा रहे हैं, वो हमारे बगल से लैम्बोर्गिनी में निकल गया है। ऑपुलेंस, यहां हम कंपेयर करते हैं। हम कंपेयर करते हैं ब्यूटी, ही इज वेरी हैंडसम और शी इज वेरी ब्यूटीफुल, या शी इज वेरी माचो मैन एंड दिस एंड दैट। हेल्थ, वेल्थ, इस पर हम कंपेयर करते हैं। या कंपेयर करते हैं पोजीशन पर, पोस्ट है, प्रेस्टीज उसका है, उसके बाद पावर है, नॉट ओनली द फिजिकल, आल्सो सम कंट्रोलिंग पावर। ये सिम्टम्स है। फेम एंड रेपुटेशन, हम सभी फेमस होना चाहते हैं। ठीक है, जब तक हमारे इंस्टाग्राम पर, हमारे रील में सब मिलियंस फॉलोवर ना हो तो इंस्टाग्राम चलाने का फायदा क्या है? तो फेम एंड रेपुटेशन, कंपैरिजन, ऑल दिस कंपेयरिंग, तो ये सारे कंपेयर के पॉइंट्स हैं। और यहां से स्ट्रेस स्टार्ट हो रहा है। आप ये बात जान लीजिए कि आपसे बेहतर आप कोई नहीं। Nobody in whole universe, you are the unique person, unique personality। हम जो हैं वो हैं। हम ऐसा नहीं कि हम हर चीज में अच्छे हो सकते हैं या हम हर चीज में ही बुरे होंगे, नहीं। आपको अपने अंदर की पर्सनालिटी को निकालना है। कंपेयर पहली बात बंद कर दो, प्रूव करना बंद कर दो। ये प्रूव करने के रास्ते पर जब हम चलेंगे, अच्छा इसके प्रभाव क्या है? जैसे ही आप कंपेयर करना शुरू कर देते हैं तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाते हैं। उसके पास अधिक या अच्छा है, मेरे पास कम। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाएगा और क्या होगा? एंथुसियाज्म खत्म, उत्साह खत्म। और वैदिक लिटरेचर कहता है कि उत्साह सबसे बड़ा पावर है। उत्साह निश्चयान धैर्यान तत्त कर्म प्रवर्तना, दैट इज द इन वैदिक लिटरेचर दिस सेंटेंस है कि उत्साह सबसे महत्वपूर्ण है। कहीं भी सक्सेस के लिए उत्साह चाहिए। उत्साह खत्म तो आप हार गए, जीती हुई बाजी भी हार जाएंगे। उत्साह, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, एंथुसियाज्म, ये इफेक्ट है। अगर आप किसी भी कार्य को करने में उत्साहित नहीं हैं, तुरंत एक पीछे जाओ और देखो कि कौन सी चीज किससे हम कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, किस कारण से, ऐसा क्या कंपैरिजन है जो हमारे उत्साह को समाप्त कर रहा है। कहीं भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी भी आए, तुरंत पहचानो और ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। ये कंपेयर करने के कारण आता है। और इसका फिर प्रभाव क्या होगा? अच्छा, फ्रस्ट्रेशन, इसका बड़ा भाई फ्रस्ट्रेशन आएगा। और फिर डिप्रेशन, बड़े से बड़े भाई। ये सारी चीजें कंपेयर के कारण आएंगे। और इसका मेन कारण क्या है? क्यों भाई हम कंपेयर कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं कंपेयर? ड्यू आगे बढ़ने की, उससे अधिक फेमस होने की, उससे बड़े पोस्ट पर जाने की, ऑलवेज ग्रीड। और जब तक ग्रीड है, ठीक है, ग्रीड, लालच, इसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लालच बुरी बला है। अगर लालच है वो हमेशा हमें नीचे करेगी। नीचे कहते हैं भगवत गीता में बताया गया, तीन जो है
वो गेट ऑफ हेल्थ है, उसमें से एक है लालच, काम, क्रोध, लोभ, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, ये हमेशा नीचे आपको गिराएंगे। और इसका उपाय क्या है? संतोषम परमम सुखम, सेटिस्फैक्शन। इफ यू आर सेटिस्फाइड, देन सेटिस्फैक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि मैं इतने में सेटिस्फाइड, आगे बढ़ना ही नहीं, वो क्या हो गया, वो काम चोरी हो गई। सेटिस्फैक्शन मीन्स होता है, सेटिस्फैक्शन कब आएगा? जब आप अपने वर्क को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, then you will get satisfaction, चाहे जो भी उसका आउटपुट है, आउटपुट जो भी। भगवत गीता में भी आपने बहुत फेमस श्लोक सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ऐसा क्यों? बिकॉज हम कर्म करने के हमारे पास अधिकार है। व्हाट द रिजल्ट विल कम, इट विल कम, let him come. Only we have to do the action, and depend on the action you have done, you have performed, the action and result will come automatically and be satisfied. तो लालच का खत्म कैसे करना है? सेटिस्फेक्शन से और ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, जो है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड, जो नहीं है, इसलिए कहते हैं कि समस्या ये नहीं है कि मेरे पास कार नहीं है, समस्या ये है पड़ोसी ने अभी नई कार खरीदी, वहां समस्या किसी को ये समस्या नहीं होता कि मेरे पास नहीं। वो 3 इडियट में था, समस्या की सबसे दुखी तब होते हैं जब हमारा कोई दोस्त नंबर बना जाता है। सब फेल है तो ठीक है, गैंग साथ है, लेकिन एक नंबर बना गया तो सबसे दुखी। तो क्यों? तो जो है वो छोड़कर जो नहीं है उसके पीछे हम दौड़ रहे हैं। कंप्लेन, दूसरा है कंप्लेन। कंप्लेन से क्या क्या होगा? कहां कहां कंप्लेन करते हैं? हम कंप्लेन करते हैं कोई पर्सनल सफरिंग है, बहुत दुखी, किसी ने हमें कर दिया, कंप्लेन करें किसी ने ऐसा किया। कोई हमारे पास मिसमैनेजमेंट है, एवरी टाइम जस्ट सिटिंग ऑन सम शॉप्स एंड हैविंग अ टी एंड reading the newspaper, the people say, गुजरात में ये, देश में ये, विश्व में ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने घर का मैनेजमेंट चल नहीं रहा है, उसमें हम घर का छोड़ो, खुद सेल्फ मैनेजमेंट में हम फेल हैं, उठने में फेल हैं, सुबह जो हमने डिसाइड किया उसको करने में हम फेल हैं, और हम क्या करते हैं? सारे तरफ अव्यवस्था है भाई, हाय हाय। फर्स्ट मैनेज योरसेल्फ, सैनिटी स्टार्ट फ्रॉम होम। पहले खुद मैनेज हो जाओ, फिर सब परिवार, फिर समाज, फिर देश, फिर अपने आप मैनेज होगा। तो मिसमैनेजमेंट के कारण, लेकिन मिसमैनेजमेंट है तो कंप्लेन होगा ही होगा। अन्याय हो गया मेरे साथ कुछ, तो हम कंप्लेन करेंगे। कोई मिसबिहेवियर हमारे साथ हो गया तो हम कंप्लेन करेंगे। ये सारे रीजन के कारण कंप्लेन सिम्टम्स आते हैं। इसका प्रभाव हमारे पर क्या पड़ता है? जब हम कंप्लेन करते, पीड़ा होती है हमें, इसलिए दुख हुआ, इसलिए हम कंप्लेन कर रहे हैं, या प्रेजेंट मोमेंट से हम डेवलपमेंट अप हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है, इतना क्या कहते हैं, स्पेस आउट हो जाते हैं, स्पेस आउट जैसा हो जाता है, और डिसकंटेंट, असंतुष्ट हो। ये सारी, अगर इनमें से कोई भी एक चीज आपको प्रभावित कर रही है, ठीक है, इनमें से कोई भी चीज आपके साथ हो रहा है, आप समझ जाइए कि आप कहीं ना कहीं कंप्लेन कैंसर से आप ग्रसित हैं। और इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है ऐसा, पहले इसका कारण क्या है? मेन कारण है एंगर। कहीं भी कंप्लेन है तो एंगर आता है, क्रोध। भगवत गीता में क्रोध के बारे में बहुत लिखा है, क्रोधा भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमः। कहते हैं कि क्रोध में लोग अंधे हो जाते हैं। जब क्रोध आता है, एंगर आता है, तो देयर आर सो मेनी सेमिनार, एंगर मैनेजमेंट, कैसे एंगर को मैनेज कैसे करना है। इवन दिस इज द वन सेमिनार, हाउ
बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कोई भी कहीं भी क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ कंप्लेन है आपकी, और इसका उपाय क्या है? वो है अप्रिशिएशन और फॉरगिवनेस, प्रशंसा करना। और कहते हैं फॉरगिवनेस, फॉरगेट एंड फॉरगिव। अगर हम क्षमा करेंगे, क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है। हमारे वैदिक लिटरेचर में सबसे बड़ा गुण बताया गया है कि किसी के गलती के कारण उसको क्षमा कर दें। और क्षमा करने का यह मतलब नहीं है कि कोई कहे देखो तुमने गलती की थी ना, मैंने तुमको माफ किया था ना, नहीं, ऐसा नहीं। क्षमा का मतलब है फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगेट मतलब भूल भी जाओ कि आपके साथ किसी ने ऐसा किया था। क्योंकि जब तक हम वी आर हैविंग अ ग्रज, उसको लेके हम चलेंगे, सक्सेस नहीं। सक्सेस करने के लिए आपको ये जो डिवाइन क्वालिटी है, ठीक है, ये आपकी लाइफ को, देखिए हम हैप्पी अगर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना और हैप्पी बनना, अगर इन दोनों में अगर क्या है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सक्सेसफुल पर्सन हैप्पी हो, लेकिन हर हैप्पी पर्सन सक्सेसफुल, चाहे वो जहां हैप्पी। तो इसके और लास्ट है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज के आंसर आलोचना। इसके लिए कुछ कोर्स है। बिफोर यू स्पीक लिसन, बोलने से पहले सुनना, सभी लोग कहते हैं। बिफोर यू राइट थिंक, बिफोर यू स्पेंड ऑन, बिफोर यू इन्वेस्ट इन्वेस्टिगेट, मार्केट रिस्क, बिफोर यू क्रिटिसाइज वेट। क्रिटिसिज्म से पहले वेट करो। बिफोर यू प्रे फॉरगिव। अगर हम कभी भी प्रे करते हैं तो वो तब आपका फ्रूटिफाई होगा जब आप किसी को फॉरगिव करें। हम दूसरों को फॉरगिवनेस नहीं दे सकते हैं, लेकिन अपने, इसे कहते हैं जब हम गलती करते हैं, when we commit mistake, then we become best lawyer, and when the other person commit mistake, then we become best judge. ऐसा होना चाहिए। हम किए तो बेस्ट लॉयर, दूसरा किया बेस्ट जज। हमारी मेंटालिटी ऐसी है। तो प्रे आप करने के अधिकारी कब बनेंगे? when you forgive, before you quit, try, before you retire, save, before you die, give। दूसरों को देना। तो ये this is just general course, but the thing is the criticism symptoms is to see bad only। हमेशा दूसरों में कुछ बुरा, कभी अच्छा देख ही नहीं सकते, हमेशा गलती निकालती है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा और बुरा देखते हैं लेकिन निकालेंगे केवल बैड चीज। उसमें अच्छाई भी है लेकिन अच्छाई की कभी बात नहीं करते, बुरी बुरी बात है ये। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि थोड़ा सा बैड निकालकर उसको इतना मैग्नीफाई कर देंगे कि आप, तो ये सिम्टम्स है क्रिटिसिज्म का। अगर ऐसी कोई चीजें आ रही हैं, आप समझ जाइए कि दिस इज द क्रिटिसिज्म, एंड क्रिटिसिज्म वर्क्स रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्ड। कोई सिचुएशन आई, ट्रिगर हुआ और हम तुरंत रिएक्ट कर देते। रिएक्ट का मतलब क्या है? रिएक्ट का मतलब सामने वाला हमसे जो कहना और कराना चाहता है हम वो करेंगे। सामने वाला यार उसने हमारी इंसल्ट की, क्यों इंसल्ट की? कि वो चाहता है कि हम गुस्से में कुछ गलत कदम उठा दें, तो वो हुआ रिएक्ट। रिएक्ट मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी करें। रिस्पॉन्ड का मतलब है कि देखिए हमारा इमोशन, आवर इमोशन इज आवर, वो हमारा ही है, ठीक है, वो हमारा ही है। यहां तक कि हमारे दुख भी हमारे हैं और हमारे सुख भी हमारे। हमें क्या रिएक्ट, हमें क्या कहना है, कोई हमारे इमोशन से आके खेल नहीं सकता। वी हैव टू बिकम लाइक दैट। मोस्ट ऑफ पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम द ब्रेकअप। Somebody came in life and they make you puppet like anything. Why? Because
बिकॉज वी आर ओनली आर रिएक्टिंग। रिस्पॉन्ड का मतलब है कि मैं और मेरी मर्जी, कोई कुछ भी कहे मैं अपनी मर्जी से उसको उत्तर दूंगा, इसमें हमारा कंट्रोल है। ठीक है, दिस इज फ्रॉम द सेवेंथ हैबिट, फ्रॉम द सेवेंथ हैबिट बुक से ये लिया गया है, इसमें डीप में नहीं जाएंगे। बट द थिंग इज व्हेन द स्टिमुलस, यानी कोई सर्कमस्टेंसेस हमारे साथ हुआ, डिफिकल्ट सिचुएशन आई, कोई कॉन्फ्लिक्ट आया, उस डर है, हमेशा रिस्पॉन्स देना है, हमें रिएक्ट नहीं करना। जिसने रिएक्ट कर दिया वो सफल नहीं बना। कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए, अब आप सोचो इस समय मेरे पास चॉइस क्या है। यू हैव योर चॉइस, यू आर फ्री टू डिसाइड विथ योर माइंड एंड इंटेलिजेंस एंड देन गिव द रिस्पॉन्स, एंड रिस्पॉन्स मीन्स एक्शन एंड एटीट्यूड। तो ये जो थिंग है, तो इसका इफेक्ट्स क्या है क्रिटिसिज्म का, कि आप डिस्करेज हो जाएंगे, निरुत्साहित हो जाएंगे, कोई गलती कर देंगे, कोई क्राइम कर देंगे, कोई अपराध कर देंगे और नीचे गिर जाएंगे, मतलब समाप्त। आप अपने पोजीशन से नीचे गिर गए, आप अपने किसी के नजरों से नीचे गिर गए, या जैसे, ठीक है। तो ये, और इसका कॉज क्या है, मेन कॉज इज क्राइम। तो और इसका उपाय क्या है, और उपाय सेम हमने बताया था, विद्या दान विनया नियाति पात्रता एंड ग्लोरिफिकेशन, अप्रिशिएशन एंड ग्लोरिफिकेशन, द ह्यूमिलिटी। कई बार आपको ऐसा कर सकता है कि भाई दिस इज, ये इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, बट इसका मतलब कहां है, बिकॉज इट अफेक्ट्स योर माइंड एंड टिल द टाइम, क्योंकि जब माइंड पे इफेक्ट होता है तो फिर उसके लिए कोई हमारे पास टैबलेट आज तक बनी नहीं है। ये कहेंगे ये लो माइंड क्रोसोसिन है, इसको खाओ खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो केवल फिजिकल या बायोलॉजिकल सिम्टम्स को समाप्त करेंगे। अगर किसी को स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस की दवा खाता है, तो वो क्या करता है कि जो स्ट्रेस यानी जो स्ट्रेन हो रहा है उसके कारण जो रिएक्शन आ रहे हैं उसको मेंटेन करेगा, लेकिन वो आपके माइंड के स्ट्रेस को खत्म नहीं कर सकता। उसको कहां से खत्म किया जाएगा, इसलिए कुछ घटना घटी, आप बहुत दुखी हो, देन यू हैव टू फेस, यू हैव टू फेस, उसको आपको फेस करना पड़ेगा। किसी ने यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा गलती कर दिया, आपको कभी उसको माफ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको क्रिटिसिज्म से बाहर निकलना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द पर्सनालिटी डेवलपमेंट थिंग्स। एंड पर्सनालिटी मीन्स नॉट ओनली द फिजिकल लुक, इवन हाउ टू, इसीलिए कहते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड, ही वाज इन एचआर वन एमएनसी, उसने बताया कि जब हम इंटरव्यू लेते हैं, एक व्यक्ति डोर नॉक करके अंदर आया और बैठा, मैं कमेंट से लेकर बैठते हैं, इतने में भी एसेस 30%, अभी नॉलेज के बारे में कुछ पूछा नहीं। क्योंकि आजकल क्या है कि अगर आपके पास थोड़ा कम भी नॉलेज है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल के कंपनी की मैं बात बता रहा हूँ, थोड़ा कम नॉलेज है, ठीक है, आपको थोड़ी जावा की कोडिंग कम आती है, कोई बात नहीं है, आपके पास वहां पे थोड़ी गूगल का बैंक रहेगा, आप गूगल पे जाओगे, ये एप्लेट्स और ये कोड वो कोड, या अपने फ्रेंड से पूछ लोगे, कलीग से पूछ लोगे, एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। But if you having an attitude problem, if you have a problem of personality, inner personality, वहां पर उसके लिए कोई गूगल सर्च नहीं होगा, उसके लिए आपको you have to come here, you have to come here. So that's why, because this is the mind cancer. और जब तक हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, इंटेलिजेंस से, इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस को शार्प कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ नॉलेज। ज्ञान जो है वो इंटेलिजेंस को शार्प करेगा, इंटेलिजेंस माइंड को कंट्रोल करेगा। एंड हाउ दिस वर्क्स, दिस इज अ मैकेनिज्म, ये सारे हमने मैकेनिज्म बताया। इसलिए कहते हैं हर छोटी चीज एक बड़ा डिफरेंस लाती है। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा मैच स्टिक पूरे कमरे में प्रकाश जला सकता है। एक छोटा सा आपके शूज में एक छोटा सा सैंड हो गया, आप चलते चलते रह रहे, ऐसे चलने नहीं देगा, यू फील अनकंफर्टेबल, स्मॉल थिंग्स।
एक छोटी सा मॉस्किटो बाइट आपको मलेरिया, टाइफाइड ला सकता है। एक छोटा सा काइंड वर्ड, आपने कुछ शब्द बोले, वो आप किसी को फ्रेंड बना सकता है, किसी को एनिमी बना सकता है। आपने एक आपका वोट किसी को जिता सकता है, किसी को हरा सकता है। 1 मिनट बहुत कुछ बदलाव कर सकता है। 1 सेकेंड फ्रैक्शन या मिली सेकेंड, अगर 10 सेकंड छोड़ा जा रहा है, सेकंड्स का 1000 हिस्सा भी पूरे मिशन को फेल कर सकता है। एक छोटी सी सीड एक बड़े से बड़ी चीजों को जन्म दे सकती है। तो कहने का मतलब हर छोटी चीज। एक बार एक बच्चे से किसी ने पूछा, एक पिता था, एक बच्चा, दोनों साथ में जा रहे थे, तो एक अंकल आए और उसने बच्चे से पूछा, बेटा बेटा एक क्वेश्चन बताओ। तो कई बार ऐसा होता है, छोटे बच्चे को पूछते रहते हैं। उसने पूछा, व्हाट इज 8 मल्टीप्लाई 7? 8 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है? छोटा बच्चा था, उसने कहा अंकल 22। तो पिताजी ने उसका शाबाश बेटा शाबाश शाबाश, और फिर चले गए। अंकल जी से बच्चा तो बच्चा, पिता को नहीं, पिताजी भी नहीं सीखे हैं। फिर अगले दिन दोनों पिता बच्चे दोनों आए, फिर अंकल जी ने कहा कि चलो मजे लेते हैं। वो गए, फिर गए, बेटा बेटा बताओ थोड़ा 8 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है? बच्चे ने कहा अंकल 32। तो पिता ने कहा बेटा शाबाश, फिर चले गए। अंकल जी बहुत परेशान, ये तो बहुत मजेदार है। अगले दिन फिर से आए और वो इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे पिता बेटे। और फिर आया और फिर पूछा, बेटा बेटा बताओ 8 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है? तो बच्चे ने कहा अंकल 42। पिता ने कहा शाबाश बेटा शाबाश। इस बार अंकल जी से रहा नहीं गया कि आपको डू यू नो द टेबल? मैथमेटिक्स कभी पढ़ा है? आपका बेटा डेली गलत दे रहा है आंसर और आप उसको हर बार शाबाश कह रहे हो, ये क्या बात होगी? तो पिताजी ने कहा कि एक्चुअली आई नो माय लिटिल बेबी इज रॉन्ग। लेकिन आपने एक चीज नहीं देखी कि उसने 2 दिन पहले बोला 22, कल 32 बोला, आज 42 बोला, कल वो 52 बोलेगा और एक दिन बोलेगा 72। और जिस दिन 72 बोलेगा मैंने कहा बेटा आगे मत बढ़िए, यही राइट आंसर है। द स्मॉल बेबी स्टेप्स, द स्मॉल बेबी, ईच एंड एवरी एक्शन, द पूरे टॉपिक को का समरी मैं क्या बताना चाहता हूं, पूरे टॉपिक का समरी है ईच small action that make the scripting of your mind. Each small activities, each small word, each and every syllable affects on your mind. Each and every syllable what you hear affects on your mind. Each and every flash कोई कुछ देख लिया affects on your mind. That makes the scripting on your mind, and then this mind becomes, then it's suffering with the compare, criticize and complain. तो इन सब का निचोड़ क्या है कि आपको क्या करना है? Change the scripting of your book of mind and being a successful person. How it works ये मैंने बताया. And the last thing is कभी भी सफल, यहाँ पे जैसे ये हमारे वैदिक लिटरेचर से 2 सीन दिखाए गए हैं। एक सीन दिखाया गया है रामायण का। ये रामायण में जटायु है, रावण जो है माता सीता को लेके जा रहा है, जटायु उससे फाइट कर रहा है और इस फाइट का रिजल्ट क्या हुआ? रावण ने जटायु को मार दिया, जटायु गिर जाता है एंड फाइनली ही डाइड। दूसरी तरफ क्या है कि यहाँ पर अर्जुन है, महाभारत का युद्ध है। अर्जुन ही फॉट द महाभारत वार एंड बिकम वर्चुअस, विक्टोरियस, वो जीत कर। यहां तो बताया गया कि इन भगवान की नजरों में हर प्रयास महत्वपूर्ण, रिजल्ट नहीं। यहां पर हो सकता है रिजल्ट महत्वपूर्ण हो, लेकिन इन द आईज ऑफ लॉर्ड और गॉड आवर एफर्ट्स इज मैटर। और इसलिए एफर्ट्स क्या हुआ? इवन द लॉर्ड राम केम एंड ही केम टू नो दैट जटायु हैज फॉट
तो उन्होंने क्या किया, उस जटायु को अपने गोद में उठाया, जैसे अपने पिता दशरथ महाराज का संस्कार किया था वैसे ही उनका अंतिम संस्कार किया। जो कहते हैं कि अंत समय में भगवान का नाम, तो जिस भगवान का नाम लोग अंत समय में याद करना चाहते हैं वो भगवान खुद आकर उनको अपने हाथों में इम्प्रेस करके उसको आगे ले गए। तो मैटर नहीं है कि हम सक्सेस और फेलियर, भगवत गीता में इसलिए एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, सुख दुखे समेत त्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख और दुख में समान बने रहो, लाभ और हानि में समान बने रहो, मान अपमान में समान बने रहो। जो ये इन दोनों में बायस समान बना रहता है, ऐसे वक्त वह है धीरज तत्र न मुनि। ऐसा व्यक्ति जो है स्थित प्रज्ञ है। भगवत गीता में बताया गया। अर्जुन रो रहे हैं, अरे मैं नो, सुख में सुखी है, दुख में दुखी सभी होते हैं, बट यू हैव टू मेंटेन, दोनों को कंट्रोल होना चाहिए, सुख और दुख दोनों, बिकॉज़ इट विल कम टुडे और टुमारो। अब हर जगह सक्सेस नहीं होगी, हर जगह फेल भी नहीं होगी, अब हर जगह आपको सम्मान नहीं मिलेगा, कहीं आपको अपमान भी मिलेगा, कहीं पे आप नीचे गिरोगे भी, कहीं पे उठोगे भी। तो अगर आपने ये जान लिया कि नहीं, इट विल कम टू मी, बट द मेन थिंग इज आवर एफर्ट्स, व्हाट वी आर डूइंग फॉर दैट, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, that is matter, and all the matter depends on each and small every action that relate to our mind, and that mind, इसलिए कहते हैं, if you make the mind your friend, that is the best friend. If your mind is controlled, that is the best friend. If the mind is not controlled, this is the best or dangerous enemy. सबसे बड़ा शत्रु है आपका मन, और सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है। तो how to make positive या favorable, how to make favorable our mind, this is the mechanism. I am not saying that कि आपको ये करना है वो करना है, I am just sharing the how the mechanism